السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک اینڈ ادر کورلڈرا ٹیوٹوریلز۔ دوستو اس سے پہلے ہماری تین ویڈیوز ہو چکی ہیں کورلڈرا کورس پر، جس میں پہلی کلاس میں ہم نے کورلڈرا کا انٹروڈکشن پڑھا تھا، دوسری کلاس میں ہم نے پک ٹول کے بارے میں پڑھا تھا، اور تیسری کلاس میں ہم نے شیپ ٹول کے بارے میں پڑھا تھا۔ اور شیپ ٹول میں ہم نے پیپسی کا لوگو اور پھول وغیرہ بنائے تھے۔ دوستو اگر آپ بھی گرافک ڈیزائننگ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے کورلڈرا کورس کو جوائن کر سکتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو۔ جی تو ہمارا جو اگلا ٹول ہے وہ سموز ٹول ہے، جو کہ شیپ ٹول کے بالکل ہی نیچے ہے۔ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہاں پہ جیسے ہی آپ یہاں پر نیچے چھوٹا ایرو بنا ہے، اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو سارے ٹول یہاں پر نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ ہمارا سموز ٹول ہے۔ یہاں پر ہم ایک لیتے ہیں جی ریکٹینگل، اس میں ہم کر لیتے ہیں کلر۔ یہ دیکھیں اس ٹول کا کام میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے۔ یہ دیکھیں آپ نے کئی بار کارٹون دیکھے ہوتے ہیں، بہت الٹے پلٹے کارٹون بنے ہوتے ہیں، تو وہ اسی سے یہ دیکھیں ایسے بنتے ہیں، ان کے کارٹون وغیرہ اس سے بنتے ہیں یہاں سے۔ یہ دیکھیں ان کو وہ ایک گول شیپ لیں یا ریکٹینگل لیں تو ان کو وہ بہت ساری شیپس بنا لیتے ہیں۔ جو گرافک ڈیزائنر ہوتے ہیں، جو ویڈیو ایڈیٹنگ کرتے ہیں 3D، تو یہ وہاں پر بہت زیادہ یوز ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں اب یہ تو باہر کو کھینچ رہا تھا، اگر ہم یہاں سے اس کو مائنس ہے تو پلس میں لے جائیں تو یہ دیکھنا۔ اب آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے یہ کیا کر رہا ہے، یہ باہر کو بریک لے کر جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں یہ دیکھیں جیسے ہم باہر کو کھینچ رہے وہ بریک ہوتا جا رہا ہے، بریک۔ اب یہ اندر والے کلر کو باہر پھیلا رہا ہے، اور جب یہاں پر ہم مائنس میں لے جاتے ہیں تو یہ دیکھیں جب ہم باہر کو لے کے جاتے ہیں تو اس کو وہ بڑا کرتا جا رہا ہے، اور جب ہم اس کو پلس میں لے کے جاتے تھے تو جیسے ہم اس کو باہر لے کے جاتے ہیں تو وہ چھوٹا کرتا جا رہا ہے۔ دیکھیں اور چھوٹا کرتا جائے گا یہاں پہ، یہ دیکھیں یہ چھوٹا کرتا جا رہا ہے۔ تو اس ٹول کا کام بیسیکلی جو ہے کارٹونز وغیرہ بنانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ ٹول کی طرف۔ یہاں پر ایک ہم سرکل لے لیتے ہیں، اس میں بھی کلر کر لیتے ہیں۔ اب آپ کو یہاں پر بھی سموز ٹول کا یوز بتا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں اس کو کر لیتے ہیں مائنس، اور یہاں سے یہ دیکھیں آپ نے کئی بار دیکھے ہوں گے جو اینگری برڈز ہیں وہ اسی سے بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس کو پکڑا ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی محنت کی ہے۔ یہ تو میں جلدی جلدی بنا رہا ہوں تو اچھے نہیں بن رہے، تو آپ ذرا محنت کر کے بنائیں گے جب بھی آپ کو کوئی ایسا ڈیزائن آئے گا، جب آپ محنت کر کے اس پر بنائیں گے تو آپ کا ڈیزائن بہت اچھا بنے گا۔ یہ دیکھیں یہاں پر یہ کرونا وائرس ٹائپ بن گیا ہے، کوئی نہیں، ہم اس کو کرتے ہیں ڈیلیٹ۔ ہم چلتے ہیں اپنے اگلے ٹول کی طرف۔ یہاں پر ہم ایک ریکٹینگل لے لیتے ہیں، یہ ہمارا ریکٹینگل آ گیا، اس میں ہم کر لیتے ہیں کلر، اور یہاں سے ہم لیتے ہیں اسی کے نیچے ایک ٹول ہے رافن ٹول، رافن برش، اس کو ہم پکڑیں گے۔ اب آپ نے غور سے دیکھنا ہے، یہاں پہ اس کا سائز جو ہے وہ بڑھا لیتے ہیں، یہاں سے اس کا سائز، یہ ہم نے سائز اس کا بڑا کر لیا۔ اب آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے، یہ دیکھیں یہ آپ کا ایک ڈیزائن بن گیا، آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہاں سے ہم کر لیتے ہیں جی یہاں سے، یہ دیکھیں یہ ایک طرف سے کیسا ہو رہا ہے ایک طرف سے کیسا، تو آپ نے یہاں پر جب اس کو زیرو کر لینا ہے، یہاں پر زیرو۔ اب دیکھنا ہے آپ نے ایک اور ریکٹینگل لے لیتے ہیں، کلر کر لیتے ہیں۔ اب رافن ٹول برش پکڑتے ہیں اس کو، اب دیکھیں بالکل ہر طرف سے سیم ہو رہا ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیں، یہ دیکھیں ہمارے پاس کتنا پیارا ڈیزائن بن گیا۔ دائرے میں ذرا بناتے ہیں، کنٹرول پریس کیا، یہ دائرہ لے لیا، اس کو ہم کلر ریڈ کر لیتے ہیں، رافن برش پکڑتے ہیں یہاں سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو ہوتے ہیں گفٹ کارڈ وغیرہ، ان پہ بھی ایسے ڈیزائن بنے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک پھول ٹائپ بن گیا ہے، پھول جیسا ڈیزائن بن گیا ہے۔ تو یہ آپ جیسے جیسے آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ کو یہ بہت اچھا
आता जाएगा। कोल्ड्रा बहुत ही आसान एक ग्राफिक डिज़ाइनर सॉफ्टवेयर है। इस पर आप, मैं तो जितना भी अपना ग्राफिक्स का काम है इसी सॉफ्टवेयर पर करता हूँ। तो ये बहुत मुझे तो ये बहुत आसान लगता है, फोटोशॉप से ज़्यादा आसान तो मुझे कोल्ड्रा लगता है। तो फिर चलते हैं हम अपने अगले टूल की तरफ। अगला टूल है हमारे पास फ्री ट्रांसफॉर्म। यहाँ से हमें एक सर्कल ले लिया, इसमें कर लेते हैं जी ये कल। यहाँ से हमने अब अपना फ्री ट्रांसफॉर्म टूल पकड़ना है। यहाँ से ये देखें, अब ये देखें, ये हम इसकी रोटेशन को चेंज कर सकते हैं, यानी कि इसके एंगल को चेंज कर सकते हैं। हम जिस मर्जी एंगल में अपने बॉक्स को रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको यूज़ नहीं करते। ज़्यादातर लोग पिक टूल पकड़ते हैं, इसी के ऊपर डबल क्लिक करते हैं और इसको रोटेट कर लेते हैं जैसे मर्जी। ये देखें, यहाँ से ये रोटेट किया, यहाँ से फिर रोटेट किया। तो ये ऐसे लोग ज़्यादातर इसी को इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ पर एक डिज़ाइन बना लेते हैं। ये देखें, ये हमारा एक डिज़ाइन बन गया है जैसे बिल्डिंग टाइप। या अब इसको सिलेक्ट ऑल करें, यहाँ से सिलेक्ट ऑल, और यहाँ पर कंबाइन कर दें। अब इसमें कलर करते हैं हम रेड। अब देखें कैसा 3D टाइप हमारा एक डिज़ाइन बन गया है। ये देखें, इसको हम कर लेते हैं डिलीट। अब यहाँ पर एक सर्कल लेते हैं। ओके, यहाँ पर इसको पकड़ा, नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ से हम इसको पकड़ा, इसको थोड़ा सा मूव कर देते हैं। बस करें हम इसको रख देते हैं यहाँ पर। अब कंट्रोल डी प्रेस करते जाना है। ये देखें, हमारा यहाँ पर जो है डिज़ाइन सही नहीं बना, क्योंकि यहाँ पर फासला रह गया, यहाँ पर भी फासला रह गया। अगर आप चाहते हैं कि आपका डिज़ाइन बिल्कुल सही बने, बिल्कुल सेफ बने, यानी कि हर तरफ से फासला सेम हो और हमारा डिज़ाइन भी अच्छा बने, तो उसको कर लेते हैं डिलीट। आपको पता होगा कि किस एक 360 एंगल से रोटेट करती है, तो आपने अपने ज़हन में सोच लेना कि आपने कितने, जो हम यहाँ पर एक सर्कल लेते हैं, आपने सोचना कि आपने अपने डिज़ाइन में कितने सर्कल लेने हैं। फ़र्ज़ करें कि हम 15 सर्कल लेने हैं, तो आपने यहाँ से कैलकुलेटर निकाल लेना है। कैलकुलेटर निकालने के बाद आपने 360 डिवाइडेड बाय, आपने 15 लेने तो 15 लिख लें, 30 लेने तो 30, हम यहाँ पर 30 लेते हैं, इक्वल। अब आपने इसको नोट कर लेना है। ये नोट कर लिया आपने, पिक टूल पकड़ना है, इसको पकड़ के यहाँ पर रख लेते हैं, थोड़ा सा इधर। यहाँ से फिर आपने अरेंज में जाना है, ट्रांसफॉर्मेशन में, रोटेट में चले जाना है। अब यहाँ पर आपने वो एंगल लिखना है। हमारा एंगल क्या आया था, यहाँ पर 12 एंगल आया था। 12 यहाँ पर टाइप कर देना है, 12। यहाँ से एक कॉपी कर देनी है, एक कॉपी, और यहाँ से अप्लाई करते जाना है। ये देखें, ये आपका डिज़ाइन बनेगा। ये देखिए, इसका हर तरफ से फासला जो है बिल्कुल सेम है, कहीं से कोई जो है वो जगह नहीं है जहाँ से सेम ना हो। तो हम इसको सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं, इसको यहाँ से कंबाइन कर लेते हैं। अब इसमें हम कलर करते हैं। ये देखिए, हमारा डिज़ाइन बन गया। अब हम हर एक में अलग अलग कलर कर लेते हैं। और जो अलग अलग कलर करने का ये टूल आपको आगे आएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ। इस टूल का नाम है स्मार्ट फिल टूल। अब यहाँ पर अब शेप बनी हुई है, अब इसमें क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ उसी शेप में कलर करेगा। यहाँ से आप सिलेक्ट करें, कलर सिलेक्ट करें, और यहाँ से करते जाएं, यहाँ से भी, और यहाँ, ये देखें, ये कलर करते जाएं, आपका डिज़ाइन बन चुका है। ये देखें, तो यहाँ पर ये देखें, मैंने इसमें कलर कर लिया। अब आप इसको सिलेक्ट करते हैं, हम सिलेक्ट ऑल, और यहाँ से नो आउटलाइन कर देते। जैसे आप यहाँ पर
क्लोज वाले बटन पर यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे तो इसकी आउटलाइन जो है ख़त्म हो जाएगी। अब ये देखिए हमारा कितना प्यारा एक डिज़ाइन बन गया। आप भी ऐसे प्यारे प्यारे डिज़ाइन बना सकते हैं कोरल ड्रा का यूज़ करके। तो दोस्तों चलते अपने अगले टूल की तरफ। हम यहाँ पर ले लेते एक सर्कल और एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर इसमें हम कलर कर लेते हैं, दोनों में हमने कलर कर लिया। यहाँ पर हमारा अगला टूल है स्मेयर, इसको सिलेक्ट करते हैं। अब ये देखिए आपको यहाँ पर ये कट बना के दिखाएगा। ये देखें, ये जैसे आपको ऐसे फूल कई तरह के मिलते हैं, जैसे गोल होते हैं उनमें कट लगे होते हैं ऐसे ऐसे। ये देखें, ये हमारा एक फूल टाइप बन गया इससे। अब इसमें करते हैं, ये देखें ये आपका कट बन गया है। इससे आप शादी कार्ड वगैरह भी बना सकते हो, उसमें भी आपने देखा होगा कहीं में कट लगे होते हैं ऐसे। तो ये इसी से डिज़ाइन होते हैं। ये भी एक अमेजिंग टूल है, आप इसको यूज़ करेंगे। चलते हैं अपने अगले टूल की तरफ। हमारे पास अगला टूल है ट्रिल। यहाँ पर हम एक सर्कल ड्रा करते हैं, कलर करते हैं, यहाँ पर ट्रिल टूल को सिलेक्ट करते हैं। ये देखें, अब हमने गौर से देखना है इसमें क्या हो रहा है। ये देखें, ये आपका टैटू बन रहा है। हम इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये देखना, आपने इसको प्रेस करके रखना है, वहां पर आपका गोल हो जाएगा। ये देखें यहाँ पर और यहाँ पर, ये देखें इससे ज्यादातर टैटूज वगैरह बनते हैं, जो हम स्टिकर्स भी मिल जाते हैं। तो वो टैटू जो होते हैं गोल टाइप होते हैं, कईयों में ऐसे डिजाइन वगैरह बने होते हैं। तो वो इसी टूल से, जो टैटूज वगैरह होते हैं वो इसी टूल से बनते हैं। ये भी एक अमेजिंग टूल है। तो इसको हम डिलीट कर लेते हैं। यहाँ से ड्रिल टूल, ये देखें यहाँ पर, इसमें ज़रा कलर करते हैं फिर आपको सही समझ आएगी। ड्रिल टूल और यहाँ से ये देखें, ये यानी कि शक्ल को गोल शेप में जलेबी टाइप बना देगा। ये देखें, यहाँ पर, ये देखें। ठीक है जी, चलते हैं अपने अगले टूल की तरफ। है हमारा नेक्स्ट टूल है जी, यहाँ पर हम लेते हैं रेक्टेंगल। यहाँ से अट्रैक्ट टूल है हमारे अगले टूल का नाम। ये देखें, ये यहाँ से ये अट्रैक्ट का मतलब अपनी तरफ खींचना। जहाँ से हम पॉइंटर रख के उसको खींचेंगे जिस तरफ, तो वो हमारी शक्ल शेप जो है वो उसी तरफ जाती जाएगी। ये देखें, जहाँ से मर्जी आप कर सकते हैं। ये देखें, फिर यहाँ से कर लें आप, यहाँ से कर लें, यहाँ से कर लें, जहाँ से मर्जी कर लें। यहाँ से ये ट्रैक्ट है, तो इसी के साथ हमारे पास एक रिपेल टूल है, उसको भी हम यहीं पर यूज करते हैं। ये देखें, अब जहाँ पर रख के आप दूसरी तरफ जाएंगे तो ये अंदर को सिलेक्ट होगा। यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं ये, और यहाँ पर आपने देखना है। ये देखें, मैं इधर को कर्सर लेके जा रहा हूँ, वो अंदर को हो रहा है। यहाँ से ये देखें, ये यहाँ पर मैंने प्रेस करके रखा, वो जा रहा है दायरे तक। यहाँ पर प्रेस करके रखना है। ये देखें, ये, और यहाँ से ये देखें। तो दोस्तों आज की वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।